Welcome class 10th to your maths class. Students, we are doing our chapter Introduction to Trigonometry. So continuing with the same chapter, our topic is trigonometric identities. In our last video we have done trigonometric identities. Today we are going to use those identities to prove other useful identities. So before starting today's video, let me share learning outcomes. After watching today's video, you will be able to use trigonometric identities to prove other useful trigonometric identities. First of all, let's have a recap of the identities we have done in previous video. First identity was sin square a plus cos square a is equal to 1. Second identity was 1 plus tan square a is equal to secant square a. And the third one was 1 plus cot square a is equal to cosecant square a. So we are going to use these three basic identities to solve the questions today. So moving on to question number 5, first part. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. First part is cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 plus cos theta. To solve this question, we have to take either left hand side or right hand side and prove it equal to the other side. So in this question, I am going to take right hand side. We will take right hand side here. That is 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Then rationalize its denominator. That means multiplying and dividing by 1 minus cos theta. So in numerator we get 1 minus cos theta whole square, and in denominator our formula is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So using this identity we get 1 minus cos square theta. So we have done one identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अगर हम cos square theta को इस साइड शिफ्ट कर दे तो क्या आ जाएगा बेटा? sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. तो हम क्या करेंगे, 1 minus cos square theta को डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर देंगे sin square theta से. So write it as 1 minus cos theta whole square अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब इसका भी स्क्वायर है, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर के साइन थीटा को न्यूमरेटर की टर्म्स के साथ अलग अलग लिखेंगे. ये बन गया बेटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर. बेटा 1 over साइन थीटा इज cosecant theta and cos theta by sin theta is cot theta. So this is our right hand side. This is our left hand side. So by taking right hand side we have proved it equal to the left hand side. Now third part, tan theta upon 1 minus cot theta is plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta cosecant theta. Here I am going to take left hand side, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. बेटा यहाँ पे हमें पता है कि जो cot theta है it is reciprocal of tan theta, और जहाँ जहाँ cot theta है वहाँ पे हम इसे 1 over tan theta लिखेंगे. So it will give you tan theta upon 1 minus 1 over tan theta plus यहाँ पे भी cot theta था, इसको भी लिख दिया 1 over tan theta upon 1 minus tan theta. So in the first expression ये हमारे पास बन गया tan theta as it is न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में हमने tan theta का LCM लिया, we get tan theta minus 1, और सेकेंड एक्सप्रेशन में ये वाला tan theta नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan theta into 1 minus tan theta.
बेटा जी ये वाला tan थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके tan स्क्वायर थीटा बना देगा। सो वी गेट tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा, तो मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेके इसको लिख दूंगी -1 ओवर tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एलसीएम ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, दिस वन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा जी tan क्यूब थीटा माइनस 1। तो हमने आइडेंटिटी की हुई है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यूजिंग दैट आइडेंटिटी वी विल गेट, यहाँ पे tan क्यूब थीटा में tan थीटा a हो गया, तो tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस प्लस tan थीटा, and in denominator we get tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। बेटा tan थीटा माइनस 1 कैंसिल। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो हमारे पास है वो आइडेंटिटी हमारे पास होती है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और दूसरी टर्म tan थीटा एज इट इज। ये पूरी की पूरी इतनी टर्म हमारी सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गई, और tan थीटा एज इट इज अपॉन tan थीटा। अब डिनोमिनेटर के tan थीटा को मैं अगला कर रही हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा प्लस tan थीटा ओवर tan थीटा। बेटा tan थीटा बाय tan थीटा तो 1 हो गया। अब देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, a cos थीटा कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। Now moving on to fifth part, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a. To prove this question we are again taking left hand side. Left hand side is cos a minus sin a plus 1 over cos a plus sin a माइनस 1। देखिए इस साइड कोसेकेंट और कॉट है, तो इसलिए हम इस क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। बेटा हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड करेंगे। देखिए कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। बेटा कॉस ए बाय साइन ए क्या हो गया, कॉट ए माइनस 1 और 1 बाय साइन ए हो गया कोसेकेंट ए। ऐसे डिनोमिनेटर में फिर से कॉट ए और साइन ए बाय साइन ए फिर से 1 प्लस 1 और 1 बाय साइन ए कोसेकेंट ए। अब हमने एक आइडेंटिटी की थी बच्चे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर ए को उस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम न्यूमरेटर के 1 को लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये हो गया कॉट ए और ये कोसेकेंट ए एंड वाला मैंने साथ में लिख लिया प्लस कोसेकेंट ए
माइनस 1 की जगह क्या लिख रहे हैं, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। अब देखो बेटा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे अब, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर हमारा है 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। अगर आप अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए और यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, ये कॉमन हो गया, सो वी आर टेकिंग कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्योंकि ये हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। अब देखो बेटा ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, 1 माइनस कोसेकेंट ए, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइंस चेंज, ओवर 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई बिकॉज इट इज सेम, सो वी आर लेफ्ट विद कोसेकेंट a plus cot a, which is our right hand side. Now moving on to seventh part. Seventh part है बेटा sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. To solve this we are going to take our left hand side. Left hand side is sin theta माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा हम न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लेंगे, जब साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वी कैन टेक कॉस थीटा कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, so we are left with 2 cos square theta minus 1. Now sin theta by cos theta is tan theta. अब हम क्या करेंगे, sin square theta को लिखेंगे 1 minus cos square theta using identity 1. Identity 1 क्या थी बेटा जी हमारी, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, वी गेट tan थीटा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos square theta minus 1. So we get tan theta, यहाँ पे हो गया 2 cos square theta, 1 minus 2 is minus 1 अपॉन 2 cos square theta minus 1. बेटा ये कैंसल्ड, we get tan theta which is equal to our right hand side. Now moving on to ninth part. A ninth part is cosecant A minus sin A is into secant A minus cos A is equal to 1 over tan A plus cot A. Our ninth part is cosecant A minus sin A
into secant A minus cos A is equal to 1 over tan A plus cot A. Let's start with the left hand side. Cosecant A minus sin A into secant A minus cos A. So we can write cosecant A as 1 over sin A. sin A को हम sin A रहने देंगे और secant A को लिख देंगे 1 over cos A और cos A as it is. बेटा हम यहाँ पे हम ले रहे हैं एलसीएम sin A, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे यहाँ पे cos A एलसीएम, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए. फिर से हम इस आइडेंटिटी का यूज करें, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो हमने इन वैल्यूज़ का यूज़ किया. ए कॉज ए कैंसिल, एक साइन ए कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद साइन ए कॉज ए. Now in this case we are also going to take right hand side and solve it, and let's see if it is equal to left hand side. 1 over tan A plus cot A. बेटा tan A हो गया sin A by cos A और cot A हो गया हमारे पास cos A by sin A. Now taking the LCM in the denominator we get sin A cos A, and here we get sin square A plus cos square A. So sin square A plus cos square is 1 from this identity, so 1 upon sin A cos A. This sin A cos A will go here, sin A cos A. This is our left hand side, hence left hand side is equal to right hand side. With this our chapter number 8 is finished. So in your homework you are going to complete your examples of exercise 8.4 along with these questions. Thank you.